Hello all my dear students, a very precious good morning to all of you. This is Ajay Prakash Tiwari in front of you from Subrat Singh Children Academy, and like always I am here with new video of your chapter number 3, that is Plant Kingdom, and topic of today's class that will be bryophytes. And as you know, in previous videos we have completed algae as well as various classes of the algae. Those were chlorophyceae, Phaeophyceae and Rhodophyceae. So without wasting the time, straight forward I am moving towards your today's class topic, that is Bryophyta division number 2. So this is what division number 2, and division number 2 is what Bryophyta, a term that is written in front of these bryophytes, amphibian of plant kingdom. This term is very important. Later on we are going to discuss about this. So here some stats or points. The branch of science, the branch of science that deals with the study of, bryophytes are, or we can say that is known as ब्रायोलॉजी, यानी ऐसी साइंस की ब्रांच जो ब्रायोफाइट्स की स्टडी कराती है उसको हम कहते हैं ब्रायोलॉजी. एंड हेडविग, कौन थे? हेडविग, known as scientist Hedwig, known as father of bryology, अगर हम इंडियन की बात करें, द फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी, तो वहां पे आपको देखने को मिलेंगे फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी, सही गेस किया आप सभी ने, प्रोफेसर S.R. कश्यप, यानी इनको हम बोलते हैं प्रोफेसर शिवराम कश्यप. और हेडविग जो थे ये क्या थे? फादर थे किसके? टोटल ओवरऑल ब्रायोलॉजी के. बट अगर हम इंडियन साइंटिस्ट की बात करें, इनके कंट्रीब्यूशन की बात करें, तो प्रोफेसर शिवराम कश्यप जी थे. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रायोफाइट्स, and here we will discuss at least 6 to 7 characters. ठीक है, तो पहले मैं आपको समझाता हूँ. Bryophytes are found in the moist, humid as well as damp areas. It means that they are not directly found in the aquatic habitat, but they are just near the aquatic habitat. It means that you can observe them near the bank of the river, near the oceans, as well as on the rocks, as well as on the bark of the trees. It means that the moisture content is, if in great extent, then you will see bryophytes. अगर moisture content किसी एरिया में बहुत ज़्यादा है, वो एरिया ह्यूमिड है, डैम्प है, तो वहाँ पे आपको bryophytes देखने को मिलेंगे. And these are also known as first land plant to be colonized, यानी इस धरती पे सबसे पहले अगर कॉलोनी के रूप में कोई लैंड प्लांट दिखा तो दैट वाज ब्रायोफाइट्स. दे आर ऑल्सो नोन एज एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम बिकॉज दे नीड वाटर फॉर fertilization or sexual reproduction, as well as there is no appearance of the vascular tissues. मतलब जाइलम फ्लोएम यहाँ पे भी absent है, क्योंकि ये क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, तो यहाँ पे कंडक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, किसके? वाटर और फूड के. एंड मेन प्लांट बॉडी जो होती है बेटा गैमेटोफिटिक होती है. मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है? हैप्लॉइड, मतलब गैमेटोफिटिक है. एंड स्पोरोफाइट, दैट इज स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर, विल grow on the gametophyte. It means that sporophyte is parasite on gametophyte. So let's quickly discuss all these points. Found in moist soil, damp areas, humid places एंड वेरियस मोर. जहाँ भी नमी वाली चीज़ें आपको दिखेंगी ये आपको मिल जाएंगे.
मेन प्लांट बॉडी क्या होती है बेटा? मेन प्लांट बॉडी कैसी दिखेगी आपको? गैमेटोफिटिक। It means that in the life cycle of the bryophytes, gametophyte is the dominant stage. So main plant body gametophytic and sporophyte born on gametophyte, यानी इसी गैमेटोफाइट पे स्पोरोफाइट बॉर्न होके और एज ए पैरासाइट की तरह ये रहेगा। तीसरा पॉइंट, एज यू नो, फर्स्ट लैंड प्लांट टू बी कॉलोनाइज्ड, यानी ये पहले लैंड प्लांट थे जो एबंडेंस में हमको देखने को मिले। यहां से अगला, नोन एज एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। रीजन मैंने बता दिया है, बिकॉज नीड वाटर फॉर रिप्रोडक्शन, यानी इनको रिप्रोडक्शन के लिए किसकी जरूरत है? वाटर की जरूरत है। कैसे? बाय मीन्स ऑफ द वाटर और अलॉन्ग विद द वाटर करेंट, द एंथेरोजोइड, जिसको आप क्या कहते हो? मेल गैमीट, दैट विल स्विम इन द वाटर एंड अलॉन्ग विथ water current it will reach to the neck of the archegonium, that is what? Female sex organ that contains egg। तो अगर मेल गैमीट को फीमेल गैमीट तक पहुंचना है तो पानी की जरूरत पड़ेगी, वाटर की जरूरत पड़ने वाली है। आपको चौथा पॉइंट मैं यहाँ पे बता चुका हूँ। पांचवें पॉइंट में देखेंगे, नो वैस्कुलर टिश्यूज, मतलब जाइलम और फ्लोएम आपको यहाँ से देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। बिकॉज क्यों ऐसा होता है? नॉट वेरी टॉल, क्योंकि ये बहुत बड़े नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ जनरल से फीचर्स थे किसके? ब्रायोफाइट्स के। और आपको मालूम है कि पूरे के पूरे प्लांट किंगडम को हमने पढ़ने का कितने हेडिंग्स में प्लान बनाया है? 5। सो यहाँ से हम पहला देखेंगे हैबिटेट, सेकेंड वन विल बी दैट स्ट्रक्चर, थर्ड वन विल बी न्यूट्रिशन, फोर्थ वन रिप्रोडक्शन and fifth one economic importance. So I am going to erase all these points and then after we will discuss about the heading number 1, that will be habitat। Okay then, so मैं स्टार्ट करता हूँ पहली हेडिंग, that will be habitat। मालूम चल चुका है आपको कहाँ मिलते हैं? moist, sandy, humid places, okay, moist, humid and sandy places। second one is structure, simple here, plant body is thyroid, वही पुरानी वाली कहानी, कुछ नया नहीं है। plant body thyroid, it means that cannot be differentiated into root, stem and leaf। रूट स्टेम लीफ में क्लियर कट यहाँ पे मॉडिफिकेशन नहीं होगा, बट रूट लाइक, स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट, यानी इसमें बेटा ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ नहीं होता है, लेकिन उससे मिलता जुलता स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब यहाँ से आपको ये भी जानना जरूरी है, मोर डिफरेंशिएशन, एनसीईआरटी कहती है मोर डिफरेंशिएशन देन एल्गी। अगर हम एल्गी की
अगर हम एल्गी का कंपैरिजन करें किससे, ब्रायोफाइट से, तो हम देखेंगे एल्गी बिल्कुल भी सिंपल था, लेकिन यहाँ पे उस एल्गी के कंपैरिजन में थोड़ा बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएशन हुआ है। क्यों? क्योंकि एल्गी अभी क्या था, बहुत छोटा था, छोटा भाई था, ये क्या है, बड़े भाई है। ठीक है, तो आपको मालूम है कि बड़ा भाई है तो कुछ ना कुछ तो एडवांटेज इसके पास होगा ही। ठीक, तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो एनसीईआरटी ने स्ट्रक्चर आपको बना के दिया है, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर, जहाँ पे इसने दिखाया है दीज आर रूट लाइक स्ट्रक्चर, जिसको क्या बोला जाता है बेटा, राइजोइड्स बोले जाते हैं, और इन्हीं पे सेक्स ऑर्गन इसके प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये सेक्स ऑर्गन्स हैं, ये एक ही प्लांट पे भी हो सकते हैं और अलग अलग प्लांट पे भी ये हो सकते हैं। तो अगर एक ही प्लांट पे है तो इसको हम कहेंगे बाइसेक्सुअल गैमेटोफाइट। ये क्या है, बाइसेक्सुअल गैमेटोफाइट। ओके, बाइसेक्सुअल गैमेटोफाइट। ये क्या है, राइजोइड्स है, ये क्या है, थैलस है। ये क्या है, इसको हम बोलते हैं आर्किगोनिया, और इसको हम क्या बोलते हैं, एंथेरिडिया। पॉसिबिलिटी बेटा ये है ना कि ये जो हैं सेपरेटली इनके सेक्स ऑर्गन्स भी मिल सकते हैं अलग अलग थैलस पे। तो अगर इस पे क्या मिल रहा है, फीमेल सेक्स ऑर्गन मिल रहा है, तो इसको हम कहेंगे फीमेल गैमेटोफाइट। क्या बोलेंगे, फीमेल गैमेटोफाइट। और इसी के ऊपर अगर हमको मिल रहा है एंथेरिडियम, दैट इज व्हाट, मेल सेक्स ऑर्गन, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मेल गैमेटोफाइट। क्या बोलेंगे, मेल गैमेटोफाइट। इतनी सी बात आपको समझ में आई होगी। डिटेल स्ट्रक्चर जब हम इनका देखेंगे लिवरवर्ट्स और मॉसेस का अलग अलग, तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफिटिक थी, ये इसके गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसी गैमेटोफाइट पे मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन बॉर्न करते हैं। थैलस में बेटा यहाँ पे दो तरह की ग्रोथ होती है। एक थैलस कुछ इस तरह का हो सकता है, ग्रोथ इस तरह से होगी, इसको हम बोलते हैं फ्लैट। क्या बोलते हैं, ये फ्लैट थैलस है, या इसी को हम बोलते हैं बेटा ये हॉरिजॉन्टल है। अगली कंडीशन यहाँ पे हो सकती है, जैसा मैंने आपको बताया, रूट स्टेम और लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख सकती हैं। तो ये रूट लाइक स्ट्रक्चर जिसको राइजोइड बोला जाएगा, ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, और इसी के आसपास स्पाइरली अरेंज्ड कौन लगा होगा, लीव्स लगी होंगी। तो इस टाइप के थैलस को हम क्या बोलते हैं बेटा, इस टाइप के थैलस को हम बोलते हैं कि ये है इरेक्ट। तो दो तरह के थैलस यहाँ से आपको मिल सकते हैं। ये आपको फ्लैट यानी चपटा दिखेगा, और ये इरेक्ट मतलब सीधा दिखेगा। यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की स्टेज जो है ये गैमेटोफाइट को दिखा रही है। किसको दिखा रही है, गैमेटोफाइट को। और ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर ये आपको दिखा रहा है किसको, स्पोरोफाइट को। सो ये टोटल स्ट्रक्चर है किसका, अगर हम बात करें ब्रायोफाइट्स में। ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ जो हैं आगे चल के मैं आपको और क्लियर कट में वे में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि अभी हम इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की, हमारी अगली हेडिंग होने वाली है। अब आप कहेंगे सर आपने तीसरा न्यूट्रिशन नहीं बताया, तो पूरे के पूरे प्लांट किंगडम में बेटा न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक मोड का ही होता है। अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की, तो पहला होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही पार्ट हो सकता है फ्रेगमेंटेशन। क्या हो सकता है, फ्रेगमेंटेशन, इन विच प्लांट बॉडी विल ब्रेक इनटू 2 और मोर पीसेज एंड ईच पीसेज विल form new individual in favorable condition. Second possibility that is very unique, ज़ैमी फॉर्मेशन। क्या होता है बेटा, ज़ैमी फॉर्मेशन। ये मैं आगे चल के अभी आपको बताऊंगा क्या होता है ज़ैमी फॉर्मेशन। एक्चुअली ज़ैमी एक स्पेशल स्पोर होता है जो ज़ैमा कप में बनता है। इसके अलावा आप देखेंगे रीजनरेशन। क्या देखेंगे, रीजनरेशन। रीजनरेशन के साथ साथ एक स्पेशल स्ट्रक्चर आप देखेंगे, प्रोटोनिमा। प्रोटोनिमा, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, रीजनरेशन इज स्पेशल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, और वी कैन से दैट a process by means of which cut और decayed part में regrown, यानी रीजनरेशन नाम से ही क्लियर है, दोबारा जनरेट होना। तो अगर किसी पार्ट में कोई डिफेक्ट आ गया, कट हो गया वो, या नष्ट हो गया, सड़ गया, तो फिर से वो रीग्रो कर जाएगा। ब्रायोफाइट्स के पास ये कैपेसिटी है। प्रोटोनिमा बेटा एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि डायरेक्टली स्पोर से डेवलप होता है, और ये फोटोसिंथेटिक और ग्रीन होता है।
हम दिखाएंगे आपको मॉसेस के केस में। ठीक, तो ये तो बात हुई किसकी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अब हम बात कर लें थोड़ा सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ब्रायोफाइट्स में जनरली कैसा होता है, oogamous टाइप का होता है। ठीक है, oogamous टाइप का मतलब यहाँ पे मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन इज नोन एज एंथेरिडिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन इज नोन एज आर्किगोनिया। एंथेरिडिया विल फॉर्म मेल गैमेट एंथेरोजोइड एंड आर्किगोनिया हैज फीमेल गैमेट एग। ठीक है, हम लेटर ऑन आपको बताएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो गई एक इंट्रोडक्टरी पोर्शन किसका, रिप्रोडक्शन का। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हम एक साथ देखेंगे। अब हम यहाँ से देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स। ओके, तो अगली कैटेगरी है हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स। बेटा यहाँ पे इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। पहला, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू, हेपेटिकोप्सिडा। हेपेटिकोप्सिडा, इसी को हम कहते हैं लिवरवर्ट्स। क्या बोलते हैं इनको, लिवरवर्ट्स। एग्जाम्पल यहाँ पे आपको देखना है रिक्सिया, जो कि अब आपके सिलेबस से हटा दिया गया, मार्केंसिया, जिसका कंसिडरेशन करके आपके एनसीईआरटी ने एक्सप्लेनेशन किया है। सेकेंड वन इज ब्रायोप्सिडा, दीज आर कॉमनली नोन एज मॉसेस एंड हियर देयर इज 3 कैटेगरीज। द फर्स्ट वन इज you will see about Funaria, then after we have to watch it out Sphagnum, and in the last there is Polytrichum। 3 यहाँ पे हमको स्पीशीज देखनी है। अगला जो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, एंथोसिरोप्सिडा। एंथोसिरोप्सिडा, एग्जाम्पल ऑफ दैट इज Anthoceros, that is not a part of your syllabus. So here we are starting with the category number 1, that is simply Hepaticopsida। Hepaticopsida, इसी को आप क्या बोलते हो, लिवर वर्ड्स। और इसमें हमको किसका एग्जाम्पल लेके पढ़ना है, मार्केंसिया। एनसीईआरटी ने किसका एग्जाम्पल दे दिया है, मार्केंसिया का दे दिया है। तो सबसे पहली हेडिंग हम देखेंगे हैबिटेट। क्या देखेंगे बेटा, हैबिटेट। हैबिटेट वही पुराना डायलॉग, घिसा पिटा डायलॉग, शोले के गब्बर सिंह वाला डायलॉग, कुछ नया नहीं है। मॉइस्ट, डैम्प, ह्यूमिड एरियाज। अब आप कहेंगे मॉइस्ट, डैम्प, ह्यूमिड एरियाज कौन कौन से हैं, बैंक ऑफ रिवर्स, ओशियन, नियर द ओशियन, बार्क ऑफ ट्रीज, यानी ट्री के ऊपर आपने देखा होगा एक लेयरिंग बना लेते हैं, एज वेल एज ये कुछ ऐसे रॉक्स के ऊपर भी ग्रो कर जाते हैं जिनका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है वाटर से। ठीक, बट दे आर नॉट डायरेक्टली प्रेजेंट इन द वाटर। सेकेंड वन इज स्ट्रक्चर। इनका स्ट्रक्चर समहाउ हम आपको बता चुके हैं। स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा, थैलॉयड होता है। और ये कैसे होते हैं, जनरली गैमेटोफिटिक होते हैं, जो कि डोमिनेंट होता है इनके लाइफ साइकिल में। थैलस इनका जनरली क्या होता है बेटा, फ्लैट होता है। अगर ग्रोथ होगी तो इस तरह का होगा यहाँ पे। अब अगर आपके एनसीईआरटी का एग्जांपल, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एनसीईआरटी ने मार्केंसिया का कुछ इस टाइप का आपको डायग्राम बना के दिया हुआ है। इन्होंने बताया कि यहाँ पे आपको मिलेगा ये आर्किगोनिया, और इसी के जस्ट जैसा दूसरा स्ट्रक्चर इन्होंने बना दिया, और वहाँ पे आपको बता दिया यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एंथेरिडिया। ये क्या है, आर्किगोनियोफोर है, आर्किगोनियोफोर। और आर्किगोनियोफोर इज द ब्रांच ऑफ थैलस दैट बियर्स आर्किगोनिया, यानी फीमेल सेक्स ऑर्गन। यानी थैलस की ऐसी ब्रांच जो फीमेल सेक्स ऑर्गन को बियर करती है, उसको हम आर्किगोनियोफोर कहते हैं। और फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम क्या है, आर्किगोनिया। ऐसा ब्रांच जो क्या करता है, मेल सेक्स ऑर्गन को होल्ड करता है, उसको हम कहते हैं एंथेरिडियोफोर। और मेल सेक्स ऑर्गन कौन है, एंथेरिडिया। इसे हम क्या कहेंगे, फीमेल गैमेटोफाइट। इसे हम क्या कहेंगे, मेल गैमेटोफाइट, बिकॉज इट विल फॉर्म फीमेल गैमीट एंड इट विल फॉर्म मेल गैमीट। अगर हम इसको मॉडिफाई करके आपको दिखाना चाहें
कि कैसे यहाँ पे प्रेजेंट होता है फीमेल गैमीट। तो आर्किगोनिया बेटा एक्चुअली फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर होता है कुछ इस टाइप का, ये आपको फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर दिख जाएगा और इसके पास क्या होगा, एग होगा। ये क्या दिख रहा है आपको, एग। अगर हम इसकी बात करें ये एंथ्रीडिया, तो ये क्या बनाएगा, एक बाईफ्लैजलेट, ये बाईफ्लैजलेट बनाएगा एंथेरोजॉइड। ये क्या बनाती है, एग, जो कि नॉन मोटाइल होता है। ये क्या बनाती है, एंथेरोजॉइड, जो कि क्या होता है, मोटाइल होता है। हम आपको आगे रिप्रोडक्शन में फिर से बताऊंगा आपको। तो ये तो हुई बात किसकी, स्ट्रक्चर की। ओके, अगला जो हमारा पॉइंट है हम आपको यहाँ से बताएंगे, ये था पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 अब आपको बताऊंगा मैं। न्यूट्रिशन को म्यूट कर दिया क्योंकि सब में एक जैसा है। हम बात कर लेंगे अब रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन समहाउ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। पहला होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली बेटा यहाँ दो तरह का आपको देखने को मिलेगा। द फर्स्ट दैट इज़ व्हाट, बाय फ्रैगमेंटेशन, जिसमें प्लांट बॉडी छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगी और जो प्रत्येक टुकड़ा है वो फेवरेबल कंडीशन में नया प्लांट बॉडी बनाएगा। दूसरा यहाँ पे मैंने एक तो पहले बता दिया फ्रैगमेंटेशन, दूसरा है ज़ैमी फॉर्मेशन। ज़ैमी फॉर्मेशन, एक्चुअली ये ज़ैमी क्या होते हैं, ये बनते हैं तो सबसे पहले ये जान लीजिए कहाँ बनते हैं, ज़ैमी कप में बनते हैं। एंड ये है क्या, ग्रीन, ग्रीन होती है ज़ैमी, मल्टी सेलुलर होती है और है क्या, एसेक्सुअल बड है। एसेक्सुअल बड कैसे बनती है यहाँ से मैं आपको बताता हूँ, यही पॉइंट। ये देखिए थैलस, ठीक है बेटा। अब इसी थैलस के ऊपर क्या बनेगा, ज़ैमा कप बनेगा। ये क्या है, ज़ैमी कप, या इसी को ज़ैमा कप भी कह सकते हो। और इसी में क्या बनेंगे आपके इस टाइप के ज़ैमी का फॉर्मेशन होगा। क्या बनाएंगे, स्पेशल टाइप की ज़ैमी। तो अंदर कौन बन रहा है, ज़ैमी बन रहा है। ज़ैमी है क्या, ये एक तरह का एसेक्सुअल बड है जो कि ग्रीन होने के साथ साथ क्या है, मल्टी सेलुलर है। तो अभी तक आपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख लिया, अब बारी किसकी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ आपको लेके चलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे कैसा होता है, oogamous टाइप का होता है। तो क्विकली हम आपको दिखाते हैं किसको, आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ, आपके पहली एग्जाम्पल जिसका हम लिवर वर्ड्स का लेके चल रहे हैं, मार्केंसिया। तो कैसा है बेटा, oogamous टाइप का है। अभी तक हम क्या पढ़ते आए थे, आप क्या पढ़ते आए थे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एल्गा के केस में 3 तरह का होता था, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड oogamous। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है, केवल और केवल कैसा है बेटा, oogamous टाइप का है। मतलब यहाँ पे क्या होते हैं, सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। क्या होते हैं, सेक्स ऑर्गन्स। सेक्स ऑर्गन जो कि मेल होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एंथ्रीडिया। और ये क्या बनाता है, एंथेरोजॉइड, ठीक है। दूसरा जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है इसको क्या बोला जाता है बेटा, आर्किगोनिया। आर्किगोनिया, और इसके पास क्या होता है, एग होता है। इतनी सी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। हमने यहाँ से आपको दिखाया भी है कि ये एक पर्टिकुलर फीमेल गैमेटोफाइट है और वो मेल गैमेटोफाइट है। इसके पास फीमेल सेक्स ऑर्गन है और उसके पास मेल सेक्स ऑर्गन है। तो वही वाली कहानी है। अब ये जो एंथेरोजॉइड है ये स्विम करता हुआ किसके पास पहुंच जाएगा, इस एग के पास। किसके माध्यम से, वाटर के साथ। अब जब स्विम करता हुआ यहाँ पे पहुँचेगा तो उस प्रोसेस को आप क्या कहते हो, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद एग क्या बनाएगा, जाइगोट। जाइगोट आगे चल के क्या बनाएगा बेटा, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट क्या होता है, डिप्लॉयड। जाइगोट क्या होता है, डिप्लॉयड। स्पोरोफाइट फिर आगे चल के क्या बनाएगा, स्पोर। किस प्रोसेस से, मियोसिस प्रोसेस से। स्पोर कैसे होंगे, हैप्लॉयड। और आगे चल के फिर स्पोर क्या बना लेगा, गैमेटोफाइट। और उस गैमेटोफाइट के पास क्या होगा, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन। एक बार पूरा फिर से देख लीजिए,
एक्चुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ओगैमस टाइप। ओगैमस टाइप का मतलब सेक्स ऑर्गन होते हैं, वो कहाँ होते हैं? गैमेटोफाइट पे। मेल सेक्स ऑर्गन इज नोन एज एंथेरिडिया दैट विल फॉर्म एंथेरोजॉइड दैट इज मोटाइल और फ्लैजुलेटेड स्ट्रक्चर। And here female gamete is known as archegonia that itself contain egg and archegonia is what? Flask shape। कैसी होती है बेटा? ये फ्लास्क शेप होती है कुछ इस तरह से। एंड दिस इज ऑल्सो जैकेटेड, मतलब एक लेयर इसके बाहर आपको देखने को मिलेगी और इसके अंदर एग होता है। तो ये एंथेरोजॉइड स्विम करता हुआ इसके नेक से होता हुआ अंदर पहुंच के इसका फर्टिलाइजेशन कर देता है। तो यहाँ पे मैंने वही बताया कि एंथेरोजॉइड विल कम अलॉन्ग विद द वाटर करंट, इसीलिए पानी जरूरी है क्योंकि इसी में तो स्विम करता हुआ एंथेरोजॉइड आ रहा है, पहुँच गया एग के पास और पहुँचने के बाद फ्यूजन हुआ, फर्टिलाइजेशन जैसे आपने बोला। Immediately after that there will be formation of zygote. Zygote will form sporophyte and sporophyte by the process of meiosis will form spore and spore will ultimately grow and form gametophyte। अगर हम इसको आपको डायग्राम के माध्यम से बताएं तो कुछ इस तरह से आप देखेंगे। क्विकली मैं आपको बताता हूँ बेटा, मान के चलते हैं इसके पास ये आर्कीगोनिया थी, मतलब ये फीमेल गैमेटोफाइट था, यहाँ पे एग देखने को मिला और ये हम आपको दिखा रहे हैं इसके पास कौन है? एंथेरिडिया है जो कि क्या बना रहा है? एंथेरोजॉइड। क्या बना रहा है बेटा? ये एंथेरोजॉइड। एंथेरोजॉइड स्विम करता हुआ किसके पास पहुंचेगा? इस आर्कीगोनिया के पास। तो अगले स्टेज में क्या देखने को मिलेगा? आपका ये थैलस, और इस थैलस पे अब जो ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है कौन? आर्कीगोनिया वाला, इसके पास अंदर जो एग था अब वो किस में कन्वर्ट हो गया? जाइगोट में। अब ये जाइगोट क्या करेगा बेटा? माइटोसिस करेगा। कौन सा सेल डिवीजन? माइटोसिस। तो उसके बाद क्या कंडीशन बनेगी? उसके बाद की कंडीशन कुछ इस टाइप की बनेगी। ठीक, ये आपका क्या है? गैमेटोफाइट। ये क्या है? गैमेटोफाइट। ये क्या है? स्पोरोफाइट। ये क्या है बेटा? स्पोरोफाइट। और इस स्पोरोफाइट के पास तीन पार्ट हैं। जो एकदम नीचे का पार्ट इसको हम कहते हैं फूट, इसको कहते हैं सीटा और इसको क्या बोलते हैं? कैप्सूल। यानी तो ये तो पहले गैमेटोफाइट की बात कर लीजिए, ये तो था आपका गैमेटोफाइट और इसी गैमेटोफाइट के ऊपर पैरासाइट के रूप में कौन है? स्पोरोफाइट। इस स्पोरोफाइट के पास कितने पार्ट्स हैं? तीन। नीचे का पार्ट फूट, बीच का पार्ट सीटा, ऊपर वाला पार्ट कैप्सूल और इसी कैप्सूल में क्या बनेगा? स्पोर बनेंगे। तो जो आपका स्पोरोफाइट है, अब इसके कैप्सूल, ये जो आपका पार्ट है कैप्सूल, इसमें क्या हो जाता है बेटा? मियोसिस सेल डिवीजन हो जाता है और मियोसिस सेल डिवीजन के बाद ये क्या बना लेगा? स्पोर बना लेता है। क्या बना लेता है? स्पोर। और ये स्पोर कैसे होते हैं? हैप्लॉयड। ये स्पोरोफाइट कैसा था? डिप्लॉयड। कैसे? क्योंकि आप यहाँ देखिए जाइगोट में माइटोसिस हो रही थी जिससे बन रहा था स्पोरोफाइट। तो जहाँ पे भी माइटोसिस से कोई स्ट्रक्चर बनता है वो हमेशा कैसा होता है? डिप्लॉयड। और जहाँ पे भी कोई स्ट्रक्चर मियोसिस से बनता है वो हमेशा कैसा होता है? हैप्लॉयड। तो अब आपके इस स्पोरोफाइट में कौन सा सेल डिवीजन होगा? मियोसिस। और इस मियोसिस सेल डिवीजन के बाद क्या बनेगा? स्पोर। और स्पोर आगे चल के फिर क्या बना लेगा? फिर ये बना लेगा गैमेटोफाइट। तो ये ओवरऑल एक मैकेनिज्म थी किसकी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। और यहीं पे आके फिर आपका लिवर वर्ड्स खत्म हो गया। अब हम स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं किधर? मॉसेस की तरफ। ओके देन स्टूडेंट्स, लेट्स क्विकली डिस्कस अबाउट द मॉसेस। ठीक है ना? मॉसेस में हम पहला वही पॉइंट देखेंगे, हैबिटेट। तो बेटा इनका भी हैबिटेट वही है। कौन सा? मॉइस्ट, सेडी, डैम एंड ह्यूमिड एरियाज। ह्यूमिड एरियाज। कुछ नया? बिल्कुल भी नहीं। दूसरा स्ट्रक्चर कैसा होता है? गैमेटोफिटिक। मेन प्लांट बॉडी कैसी है? गैमेटोफिटिक। कहने का मतलब हैप्लॉयड है। थैलस कैसा है बेटा? प्लांट बॉडी तो सबसे पहले जान लीजिए कैसी है? थैलॉयड है। वही पुरानी वाली कहानी, plant body cannot be again differentiated into root, stem and leaf, but root like, stem like and leaf like structure may present here। और थैलस इनका कैसा होता है? इरेक्ट होता है। एनसीईआरटी ने एक डायग्राम दिया हुआ है और ये इस यहाँ से देखिए आप, ये रूट लाइक स्ट्रक्चर जिसको क्या बोला गया? राइजोइड
ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, जिसको जनरली स्टेम ही बोला जाता है, इसके पास स्पायरली अरेंज क्या होती हैं, लीव्स होती हैं। क्या होती हैं बेटा, स्पायरली अरेंज लीव्स। और ये आगे चल के कंटिन्यू कर देता है किसमें, स्पोरोफाइट में। तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, गैमेटोफाइट। और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या है, स्पोरोफाइट। मतलब गैमेटोफाइट के ऊपर ही कौन मिल रहा है, स्पोरोफाइट। ध्यान ये दीजिए, ये आपको स्पायरली अरेंज क्या दिख रही है, लीफ। ये क्या है आपका कैप्सूल, जो कि पार्ट है स्पोरोफाइट का। ये भी सीटा है, जो कि पार्ट है स्पोरोफाइट का। और ये फूट है, जो कि पार्ट है किसका, स्पोरोफाइट का। यानी स्पोरोफाइट के पास 3 पार्ट, फूट, सीटा, कैप्सूल। कैप्सूल टॉप पोर्शन, सीटा मिडिल पोर्शन, फूट जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है। अब हम बात करें अगर रिप्रोडक्शन की, क्योंकि न्यूट्रिशन वही कॉमन है सब में, तो जनरली वी आर नाउ डिस्कसिंग अबाउट द रिप्रोडक्शन। सो रिप्रोडक्शन अगेन देयर विल बी 2 टाइप। The first one is asexual reproduction that will simply taken place by means of fragmentation। कैसे होगा, फ्रैगमेंटेशन से होगा। इसके अलावा एक और स्टेज होती है जिसको हम बोलते हैं प्रोटोनिमा। क्या होती है बेटा, प्रोटोनिमा। हम आपको आगे चल के अभी बताएंगे, ठीक। अगला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज यू नो, यहाँ पे भी कैसा है, oogamous टाइप। हाउ, oogamous type। It means that by definite male and female sex organ। यानी यहाँ पे मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन, वही पुरानी वाली। मेल सेक्स ऑर्गन एंथेरिडिया, इट विल फॉर्म एंथेरोजॉइड। फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनिया, इट हैज़ एग। कोई नई चीज़ यहाँ पे नहीं है। अब जो 2-3 चीज़ें नई हैं वो आपके एनसीईआरटी ने बताया है। हियर मॉसिस हैज़ प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल। प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल इज गैमेटोफाइट। ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। गैमेटोफाइट दैट कंटेन्स, इसके पास 2 स्टेजेस होती हैं। दैट कंटेन्स फर्स्ट स्टेज जिसको हम बोलते हैं प्रोटोनिमा। द फर्स्ट स्टेज जो कि लाइफ साइकिल का है गैमेटोफाइट के पास, उसके पास कौन सा है बेटा, ये पहली स्टेज है प्रोटोनिमा। ये प्रोटोनिमा क्या होती है, ये ग्रीन आपका एक स्ट्रक्चर है, ग्रीनिश स्ट्रक्चर है, थैलॉइड स्ट्रक्चर है, जो आप फोटोसिंथेटिक नेचर का होता है। सो फर्स्ट स्टेज व्हाट, प्रोटोनिमा, दैट इज कैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड दिस डायरेक्टली डेवलप्स फ्रॉम स्पोर। हम आपको आगे चल के बताएंगे अभी लाइफ साइकिल में, ठीक है। दूसरा होता है लीफी स्टेज। और जो ये बेटा लीफी स्टेज है, इट डेवलप्स फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनिमा। किससे बनती है, सेकेंडरी प्रोटोनिमा से, जिसको हम बोलते हैं लैटरल बर्ड्स। एंड ये होती जो है, एंड इट कंटेन्स स्पाइरली अरेंज्ड लीफ। यानी आप यहाँ से फिर से पूरी लाइन देखिए, जो लीफी स्टेज है डेवलप कर रही है सेकेंडरी प्रोटोनिमा से। क्या होती है अभी डायग्राम के माध्यम से मैं बताऊंगा, जिसको आप लैटरल बर्ड भी कहते हैं, जो स्पाइरली अरेंज लीफ के साथ होती है। एंड अटैच टू सॉइल से अटैच होती है बाय मल्टी सेलुलर राइजोइड। यहाँ पे राइजोइड मल्टी सेलुलर होते हैं, जबकि लिवर बर्ड्स के केस में यूनिसेलुलर होते हैं। एंड बियर्स सेक्स ऑर्गन। ये तो सारी बातें हुई एनसीईआरटी में। यानी गैमेटोफाइट जो कि क्या है, प्रीडोमिनेंट स्टेज है। इसके पास 2 स्टेजेस हैं, एक प्रोटोनिमा वाली स्टेज जो कि डायरेक्टली डेवलप हुई है स्पोर से, दूसरी लीफी स्टेज जो कि डेवलप हो रही किससे, सेकेंडरी प्रोटोनिमा से, जिसको हम कहते हैं लैटरल बर्ड।
और इसी के पास स्पाइरल एयरन लीफ होती है, ये खुद सॉइल से अटैच होती है राइजोइड के माध्यम से, और इसी के पास सेक्स ऑर्गन्स भी होते हैं। तो ये पॉइंट हमें मालूम है। अभी आपको क्लियर नहीं हुआ कि प्रोटोनिमा क्या है, सेकेंडरी प्रोटोनिमा क्या है, ये कैसे डेवलप हो रही है। तो इसको मैं समझाने के लिए इसकी लाइफ साइकिल बताता हूँ, और उस लाइफ साइकिल को देखने के बाद इसकी गारंटी है कि आपको समझ में आएगा। तो इसको मैं इरेज करता हूँ, आपको ले चलता हूँ लाइफ साइकिल की तरफ। ओके, तो यहाँ से अब देखेंगे लाइफ साइकिल ऑफ मॉसेस, लाइफ साइकिल ऑफ मॉस। ठीक है ना, देखिए ये राइजोइड, ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, स्पाइरली अरेंज्ड क्या है बेटा, लीव्स हैं। इसको हम बोलते हैं लीफी स्टेज गैमेटोफाइट। ये क्या है, लीफी स्टेज गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको अगर हम और एलेबोरेट करें तो कुछ इस टाइप का हमको दिखेगा। इसके पास कुछ ब्रांचेस भी होती हैं, लैटरल ब्रांचेस। ठीक, अब इन्हीं ब्रांचेस पे किसी एक ब्रांच पे क्या होगा बेटा, जो कि फीमेल सेक्स ऑर्गन है, जिसको हम बोलते हैं आर्किगोनियम। ये आर्किगोनियम आपको दिख रहा है, ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है, इसके पास एग है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मेल सेक्स ऑर्गन, जिसको आप बोलते हो एंथेरिडिया, और ये बनाएगा एंथेरोजोइड। ये क्या बनाएगा, एंथेरोजोइड। ये एंथेरोजोइड आएगा और क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के लिए कौन ज़रूरी है, वाटर। अब आपको मालूम है फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, जाइगोट बनता है। ठीक है, तो यहाँ से अब आपको देखने को मिलेगा जाइगोट। क्विकली हम यहाँ से बना लेते हैं बेटा। दिस वन इज व्हाट, क्या है, ये जाइगोट है। अब ये जाइगोट आपको मालूम है क्या करेगा, माइटोसिस सेल डिवीजन करेगा। क्या करने वाला है, माइटोसिस सेल डिवीजन। माइटोसिस सेल डिवीजन करेगा तो क्या स्ट्रक्चर आपको बनेगा, ये वाला स्ट्रक्चर बन के दिखेगा आपको। मैंने पहले भी बताया था, ये आपको जो बन के दिख रहा है, इसके पास इसको हम कहते हैं कैप्सूल। ये क्या है बेटा, शीटा। ये क्या है, फूट। और ये नीचे क्या है, गैमेटोफाइट। और ये तीनों फूट, सीटा और कैप्सूल किसके पार्ट हैं, स्पोरोफाइट के पार्ट है। किसके पार्ट हैं, स्पोरोफाइट। यानी अब आप यहाँ से देख सकते हैं ये हनुमान जी का गदा है, या आपने साउथ की मूवीज़ में देखा होगा स्पेशल टाइप के वेपन्स होते हैं मारने के लिए, तो वही वाला है। अब ये स्पोरोफाइट, इसमें इसके जो कैप्सूल है, इसमें कौन सा सेल डिवीजन होगा, मेयोसिस सेल डिवीजन। मेयोसिस सेल डिवीजन किसमें, इन कैप्सूल। किसमें होगा, कैप्सूल में होगा। और जब कैप्सूल में क्या होगा, मेयोसिस सेल डिवीजन होगा, तो फिर कैप्सूल में बन जाएगा कौन, मान के चलते हैं ये कैप्सूल था, ये फूट था और सीटा था, और यहाँ पे बना लेते हैं बेटा ये लैटरल ब्रांच पे किसी लगा हुआ था। ठीक है, इसमें अब मेयोसिस से क्या बन गए, स्पोर्स बन गए। ये अंदर कौन बन रहा है, स्पोर बन रहा है। अब ये स्पोर डिस्पर्सल के माध्यम से फिर से बाहर आएंगे, मतलब ये बाहर आ गए। और बाहर आने के बाद जो पहली स्टेज है वो बनाएंगे ली, और इस पहली स्टेज को हम कहते हैं प्रोटोनिमा। क्या बोलते हैं, प्रोटोनिमा। यहाँ से देखिए प्रोटोनिमा किससे डेवलप हो रही है, डायरेक्टली डेवलपिंग फ्रॉम स्पोर्स। तो इसी वजह से हमने आपको पहले भी बताया कि दो स्टेजेज होती हैं, एक प्रोटोनिमा वाली और दूसरी सेकेंडरी प्रोटोनिमा वाली। तो प्रोटोनिमा सीधा स्पोर से डेवलप हो गई। ये कैसी है, ग्रीन है बेटा, ग्रीन है। ग्रीन के साथ साथ ये कैसी है, फोटोसिंथेटिक। अब ये प्रोटोनिमा, इसको आप प्राइमरी प्रोटोनिमा भी कह सकते हो, सेकेंडरी प्रोटोनिमा में चेंज हो जाएगी। किस में चेंज हो जाएगी बेटा, सेकेंडरी प्रोटोनिमा में। और इसके पास कौन, लेटरल बड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। तमाम तरह की बड्स यहाँ पे बन जाएंगी। तो अब इसको हम कहते हैं सेकेंडरी प्रोटोनिमा। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी प्रोटोनिमा। और ये क्या है, लेटरल बड्स हैं। क्या है, लेटरल बड्स। अब इसमें से कोई भी एक लेटरल बड डिटैच हो जाएगी। ये क्या हो गई, लेटरल बड है, ये डिटैच हो गई। लेटरल बड ये डिटैच हो गई इस थाइलॉइड स्ट्रक्चर से, और आगे चल के फिर से क्या बना लिया, वही पुरानी वाली कहानी, मतलब लीफी स्टेज आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगी। मतलब ये क्या है, गैमेटोफाइट।
फाइट है। कैसा वाला? लीफी। मतलब हमने लीफी से स्टार्ट किया था और कहाँ पहुँच गए? लीफी तक पहुँच गए। सो दिस वाज ऑल अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ मॉसेस। यहाँ पे हमने आपको प्रोटोनिमा ये वाली और यहाँ सेकेंडरी प्रोटोनिमा दोनों बताई। इस प्रोटोनिमा को आप प्राइमरी प्रोटोनिमा कह सकते हो, डायरेक्टली स्पोर से डेवलप हो रही है। सेकेंडरी प्रोटोनिमा किससे? इस प्रोटोनिमा या प्राइमरी प्रोटोनिमा से डेवलप हो रही है। तो अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाए कि दोनों में क्या अंतर है प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोटोनिमा से, तो आप सीधा सीधा बताइए प्राइमरी प्रोटोनिमा डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर, इट इज ग्रीन एंड फोटोसिंथेटिक, while secondary protonema develops from protonema and its bear lateral buds। ओके ठीक है, तो यहाँ पे lateral buds होती हैं, यहाँ पे नहीं होती हैं। ठीक है, इसके पास मल्टी सेलुलर राइजोइड होते हैं, इसके पास नहीं होते हैं। ये डायरेक्टली स्पोर से डेवलप हो रही होती है और ये इसी प्रोटोनिमा से डेवलप हो रही होती है। तो ये था बेटा टोटल किसका? लाइफ साइकिल मॉसेस का। अगर आपसे एग्जाम्पल पूछे मॉसेस का तो मैंने पहले भी बताया है कौन कौन से हैं, फ्यूनेरिया, स्फैग्नम, पॉलीट्राइकम। इन द लास्ट वी आर गोइंग टू कंपेयर liverwort and mosses and we will also discuss about the economic importance of bryophytes। तो इसको हटा देता हूँ पहले। तो अब यहाँ से देखिए मॉसेस और लिवरवर्ट्स में अंतर। तो ये है लिवरवर्ट्स और इधर लिख लेते हैं किसके बारे में? मॉसेस के बारे में। थैलस क्या होता है बेटा? थैलस हॉरिजॉन्टल होता है, हॉरिजॉन्टल, और इसके साथ साथ क्या है? फ्लैट है। इधर क्या होता है? थैलस इज व्हाट? इरेक्ट। अभी अभी मैंने बताया राइजोइड्स इधर कैसे होते हैं, जो कि रूट लाइक स्ट्रक्चर हैं, यूनिसेलुलर। इधर आपको कैसे देखने को मिलेंगे? मल्टी सेलुलर। नेक्स्ट यहाँ पे आपको ज़ेमी बने हुए दिखेंगे, ज़ेमी फॉर्म्ड, और इधर ये नहीं बनते हैं, नॉट फॉर्म्ड। ये सारी चीज़ें आपको मैं बता चुका हूँ। स्पोर्स फॉर्म गैमेटोफाइट। स्पोर क्या बनाते हैं? गैमेटोफाइट को बना लेते हैं। और इधर स्पोर किसको बनाते हैं? मालूम है आप सभी को, प्रोटोनिमा। यहाँ पे नो स्पेशल मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल, यानी स्पोर कैसे बाहर आएंगे उसकी कोई स्पेशल मैकेनिज्म नहीं है। लेकिन इधर स्पेशल मैकेनिज्म होती है। एक्चुअली वो स्पेशल मैकेनिज्म आपका पार्ट नहीं है सिलेबस का, इस वजह से उसको यहीं पे छोड़ देते हैं। तो ये तो मॉसेस और लिवरवर्ट्स का कंपैरिजन हुआ बहुत ही सिंपल वर्ड्स में। थैलस इधर बेटा फ्लैट है, इधर इरेक्ट है, राइजोइड इधर यूनिसेलुलर है, इधर मल्टी सेलुलर है। ज़ेमी कप यानी ज़ेमी का फॉर्मेशन इधर होगा, इधर नहीं होगा। स्पोर गैमेटोफाइट इधर बनाएगा, इधर प्रोटोनिमा बनाता है। इधर कोई स्पेशल मैकेनिज्म नहीं है डिस्पर्सल की, जबकि इधर है। लास्ट में आज का टॉपिक इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस आप लेक्चर के लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट में मैं आपको 2-3 और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा। तो बेटा ये लेस इकोनॉमिक है, लेस इकोनॉमिक वैल्यू, और यानी इकोनॉमिक वैल्यू इनकी कम है। मोर इकोलॉजिकल वैल्यू, मोर इकोलॉजिकल वैल्यू, ठीक है, इनकी इकोलॉजिकल वैल्यू ज़्यादा है जबकि इनकी इकोनॉमिक वैल्यू कम है। क्यों? यहाँ से देखिए, बिकॉज प्रिवेंट सॉइल इरोजन। ये किसको रोक देते हैं? प्रिवेंट सॉइल इरोजन को। मतलब सॉइल का जो अपर लेयर उड़ जा रहा था विंड के माध्यम से, वाटर के माध्यम से, उसको इन्होंने रोक दिया। कैसे? बाय मैट फॉर्मेशन, यानी ये जहाँ पे रहते हैं ये मैट बना लेते हैं या एक कारपेट, ग्रीन कारपेट बना लेते हैं, और उस ग्रीन कारपेट या मैट की वजह से फिर सॉइल उड़ नहीं पाती है, एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं पहुंच पाती है। आपने देखा होगा घरों में, शादियों में मैट हम लोग बिछाते हैं तो फिर जो धूल होती है, मिट्टी होती है, वो उड़ती नहीं है। तो ये सेम वही काम करते हैं, ये एक मैट का फॉर्मेशन कर देते हैं। अलॉन्ग विथ लाइकेन, यानी लाइकेन प्लस मॉस, ये दोनों मिलके क्या कराते हैं बेटा? सक्सेशन कराते हैं। क्या कराते हैं? सक्सेशन, मतलब न्यू वेजिटेशन, न्यू वेजिटेशन को ग्रो करा देते हैं। अगर किसी भी एरिया में बेटा कोई भी प्लांट ग्रो नहीं कर रहा है तो उस एरिया में लाइकेन और मॉसेस को अगर हम एक साथ लेके जाएं
तो वहाँ पे एक नई वेजिटेशन का ये फॉर्मेशन कर सकते हैं। मतलब द प्लांट लाइफ इज पॉसिबल इन दोज एरियाज इन विच अर्लियर देयर वाज नो लाइफ विद द हेल्प ऑफ लाइकेन एंड मॉसेस। अगला स्फैग्नम यूज्ड एज ए फ्यूल, यानी स्फैग्नम का यूज ईंधन के रूप में स्पेशली कोयले के रूप में किया जाता है। ठीक है। अगला पॉलीट्राइकम यूज्ड टू रिमूव किडनी स्टोन, यूज्ड टू रिमूव किडनी स्टोन, किडनी के स्टोन को हटाने का काम कौन करता है? पॉलीट्राइकम। यूज्ड एज फूड फॉर बर्ड्स एंड मैमल्स। ये बटा बहुत ही कम इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, जबकि ये वाला इम्पॉर्टेंट है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। दिस वन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस वन लास्ट में जो मैं आपको बता रहा हूँ, दिस वन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यूज्ड इन ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मैंने आपको बताया कि मॉसेस क्या करते हैं? मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके रखते हैं। तो जो भी लिविंग मटेरियल है, अगर हम उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत दूर भेजना चाहते हैं और ऐसे रास्ते से भेजना चाहते हैं जहाँ पे बहुत टाइम लगा, महीनों का टाइम लग जाए, तो ऐसी सिचुएशन में हम उस मटेरियल को मॉसेस से कवर कर देते हैं। तो ये मॉसेस मॉइस्चर को मेंटेन करके रखता है और उसको हम लंबे समय तक लिविंग कंडीशन में एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेज सकते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा गया। बड़ी बड़ी जहाज़ों के माध्यम से हम जो पानी वाले रास्ते हैं वहाँ से अगर एक मटेरियल को, एक स्पेसिमेन को दूसरे देश में भेजना चाहते हैं तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो उस कंडीशन में मॉसेस को रैप अप कर देंगे और ये मॉइस्चर को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करके रखेगा और फिर उसको हम कहीं भी ले जा सकते हैं। इसी तरह से आपने देखा होगा जब हम करते हैं लेयरिंग, एक स्पेशल टाइप का वेजिटेटिव प्रोपागेशन है जहाँ पे जब हम लेयरिंग करते हैं तो वहाँ पे लेयरिंग में भी हम मॉसेस का यूज़ करते हैं। मतलब इसका यूज़ कहाँ है? इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन वेजिटेटिव प्रोपागेशन। किसमें? वेजिटेटिव प्रोपागेशन, या इसी को हम कह सकते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जो कि नेचुरल है, कटिंग है, लेयरिंग है, वहाँ पे अब हम इसका यूज़ करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द today's class. Thank you very much for watching the video, and don't forget to like the video, subscribe the channel and share with your friends, and also please send your valuable feedbacks to increase the confidence of your teacher. So that is all about for today. Like always, have a great day ahead, keep smiling, and tata bye bye, jai hind.